14 मई 2018 को रात के 8:20 पे मितेश पटेल इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करते हैं एंड फोन करके बताते हैं कि वो थोड़े देर पहले अपने घर से कुछ जरूरी सामान लेने बाहर गए थे एंड जब वो वापस आके देखते हैं उनका पूरा का पूरा घर फैला हुआ है। उनकी जो वाइफ है वो फ्लोर पे अनकॉन्शियस पड़ी हुई है एंड उन्हें जल्द से जल्द इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है। आगे जो कॉल रिकॉर्डिंग हम सुनने वाले हैं वो मितेश की आवाज है एंड उनकी इमरजेंसी कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू मितेश। Police emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. What's the address? We're on number 35, the Avenue in Middlesbrough, Linthorpe. Right, is that where your wife is now? Yeah, well, I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. Yeah. I've come home and the house is ransacked and she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's like unconscious. Right. Shall I take off her? Can she breathe? Well, no, because she's... Take the duct tape off her then. Please, can you send someone? Yeah, I am. Can I take your name, please? My name's Mitesh. Okay. I can't get it up her. I'm going to get someone straight out, okay? How long will they be? I'm going to get them travelling on blue lights and we're going to get an ambulance straight out as well. Okay. You said is your wife breathing? Can you feel her pulse? I can't feel anything. Her hands are really cold. How long have you been out of the house? About an hour. What's your wife called, please? Jessica. Listen, we've got police travelling down now. Okay? We've got police travelling down now. So I've got the duct tape off her. It was on her legs, like by her ankles, and on her arms, tied, like she's been tied up. But her hands are really cold. Are there any marks on her at all? Well, I can see marks on her neck, like really dark neck. She's been tied up by her hands. Yeah. And also tape around her legs. Yeah. And marks around her neck. Yeah. She's got like blood on her nose and like stuff dripping out onto the floor. And she's non-responsive. No, Jess, come on, baby, wake up. We've got Mitesh. Please listen to me, please. Baby, wake up. We've got an ambulance coming. They're travelling on blue lights as well. Okay. And we've got. What do you think was that, please? There's nobody on scene, is there, Mitesh? No, there's nobody here. Nobody. In the house. Okay. What room are you? Okay, listen. The police are outside. Can you let the police officers in? It's Jessica. I'll leave her with you, okay, Mitesh? I'll leave you with the police officers. Okay. ये थे 37 इयर्स के मितेश पटेल जो थोड़े ही समय पहले घर से बाहर कुछ जरूरी सामान और खाने का सामान लेने गए थे। वो जैसे ही वापस आते हैं देखते हैं घर पूरी तरीके से फैला हुआ है। उनकी वाइफ जेसिका पटेल फ्लोर पे अनकॉन्शियस बंधी हुई पड़ी हुई है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और उसे देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ब्रूटल अटैक किया है किसी ने उस पे। इसीलिए मितेश पटेल को इमरजेंसी हेल्प की जरूरत थी एंड इमरजेंसी कॉल के बाद पुलिस और पैरामेडिक्स की एक टीम क्राइम सीन पे पहुंचती है। जैसे ही पैरामेडिक्स की टीम प्राइमरी एग्जामिनेशन करती है जेसिका पटेल का, उन्हें ये पता होता है कि जेसिका पटेल ने ये ब्रूटल अटैक सर्वाइव नहीं किया, उनकी डेथ हो चुकी है। जेसिका 1983 में एक गुजराती फैमिली में जन्मी। वो 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। वो अपने सभी छोटे भाई बहन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, खुद से ज्यादा उनका ख्याल रखती थी। जेसिका के पापा जेसिका के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही शांत बच्ची थी, कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी और वो सबका ख्याल रखती थी। जेसिका की बहन मिनाल, जो कि उनसे सिर्फ और सिर्फ 18 महीने छोटी थी, वो कहती है कि जेसिका बहुत ही प्यारी थी। जेसिका के साथ मीनल को रहना बहुत ज्यादा पसंद था और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। मीनल बताती है कि जेसिका को बॉलीवुड मूवीज बहुत ज्यादा पसंद थी और वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी भी बॉलीवुड मूवी की तरह हो।
जेसिका लोगों की मदद करना चाहती थी, इसी वजह से वो फार्मासिस्ट बनना चाहती थी और उसने फार्मेसी की पढ़ाई करी थी। जेसिका ने पहले डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, फिर लैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। जब वो मैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो मितेश पटेल से मिली एंड इसके बाद उनकी दोस्ती हो गई। मितेश पटेल और जेसिका पटेल दोनों ही सेम बैकग्राउंड से आते थे, दोनों ही गुजराती परिवार से थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। जेसिका को मितेश के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील होता था, जेसिका को बहुत अच्छा लगता था, इस वजह से उन दोनों ने साथ में रहने का डिसाइड किया और वो फिर एक रिलेशनशिप में थे। ये रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक चली नहीं, पर इसके बाद जेसिका की माँ बीमार हो गई। जब जेसिका की माँ बीमार हुई तो मितेश ने अपनी पूरी जान लगा दी उसकी मदद करने में और उसकी बहुत मदद करी, उसकी फैमिली की बहुत मदद की और देखते ही देखते मितेश जेसिका के घर में सबका फेवरेट हो गया। इसके बाद जुलाई 2009 में मितेश और जेसिका ने शादी कर ली। शादी के कुछ टाइम बाद ही मितेश और जेसिका लिमफोर्ड मिडलस्ब्रो शिफ्ट हो गए और वहां पे फार्मेसी की एक शॉप खरीद ली। जिस जगह में इनकी फार्मेसी की शॉप थी वो बहुत ही बिजी एरिया था और बहुत ज्यादा सेफ प्लेस था। अब मितेश और जेसिका यहाँ की कम्युनिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके थे। सब एकदम परफेक्ट था। उन्होंने घर भी खरीद लिया था। जेसिका को कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। मितेश उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता था। सिर्फ कमी थी तो एक बच्चे की। जेसिका माँ बनना चाहती थी। जेसिका 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल बिल्कुल माँ की तरह रखती थी। इसी वजह से अब वो ये सोच रही थी कि सारा कुछ परफेक्ट हो चुका है लाइफ में, तो अब हमें फैमिली प्लान करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जेसिका एंड मितेश फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने IVF की हेल्प लेना शुरू किया। मंडे 14 मई 2018। ये दिन भी दूसरे दिनों की तरह बिल्कुल नॉर्मल था। मितेश और जेसिका दोनों ही अपनी फार्मेसी पे काम पे गए थे। जेसिका के पापा कुछ काम से फार्मेसी शॉप में भी आए थे और उन्हें याद है कि उन्होंने अपनी बेटी को बिल्कुल नॉर्मल हंसते मुस्कुराते उस दिन देखा था। जेसिका के डैड ने जेसिका को ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीक भी आते जाते वो उससे मिल लेंगे। उस दिन मितेश फार्मेसी से जल्दी चला गया। उसने मॉर्निंग शिफ्ट ली थी क्योंकि उसे जिम भी जाना था। उसी दिन शाम को 8:20 पे मितेश ने इमरजेंसी फोन किया। पैरामेडिक्स के बेस्ट एफर्ट के बाद भी जेसिका को नहीं बचाया जा सका और 34 साल की जेसिका, मतलब 34 इयर्स की जेसिका इस दुनिया से चली गई। जेसिका के 6 भाई बहन थे। जेसिका सबसे ज्यादा क्लोज मीनल से थी। मीनल को जेसिका की बहन का फोन गया और जेसिका की बहन ने बोला कि कुछ गड़बड़ हो गई है, पापा जेसिका के घर गए हैं, कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है लगता है। तब तक मीनल को ये नहीं पता था कि क्या सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है। जैसे ही सुबह हुई, मीनल को उसके हस्बैंड ने बताया कि उसकी सबसे फेवरेट बहन, सबसे प्यारी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। उसका मर्डर हो गया है, उस पर अटैक हुआ है। मीनल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो अपने डैड को कॉल करके कंफर्म करना चाहती थी। जैसे उसने अपने डैड को कॉल किया, उन्होंने कंफर्म किया कि ये बिल्कुल सच है, मीनल जेसिका पे अटैक हुआ है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही मर्डर का केस रजिस्टर किया गया, पुलिस ने सारा क्राइम सीन सील कर दिया। वहां लोगों का आना जाना बंद कर दिया ताकि सारे एविडेंसेस कलेक्ट करे जा सके। मितेश ने बताया कि जेसिका अपने काम पे नॉर्मली गई थी। 7 बजे तक वो अपने काम पे थी। वो 7 बजे वापस आई। मितेश भी फार्मेसी गया था अपना लैपटॉप लेने और पिज्जा लेने। इसके बाद मितेश 30 से 40 मिनट के बाद वापस आ गया। जैसे ही वो घर आया, उसने देखा कि जेसिका जमीन पे पड़ी हुई है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो पूरी तरीके से ठंडी पड़ गई है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। जेसिका को बांधने के लिए डक्ट टेप का यूज किया गया था और उसका पूरा घर फैला हुआ था। देख के ऐसा लग रहा था कि जिस भी इंसान ने अटैक किया है उसने पूरा का पूरा घर खोजा है कि कोई वैल्यूएबल चीज मिल सके। मितेश ने बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट के लिए ही घर से बाहर गया था और उसी बीच ये सारी चीजें हुई। उसने बोला कि वो घर से 7:44 को बाहर गया था एंड आफ्टर 30 to 40 minutes ही केम बैक।
इस सैड एंड ट्रैजिक न्यूज से मितेश और जेसिका के फैमिली वाले दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुखी थे। जेसिका के फैमिली मेंबर्स मितेश के साथ ही थे और उसे सपोर्ट कर रहे थे। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि कौन ऐसा हो सकता है जो जेसिका पे अटैक करे, या फिर कौन ऐसा हो सकता है जो ये चाहे कि जेसिका मर जाए। नेक्स्ट डे पूरी स्ट्रीट पुलिस और पुलिस वैन से भरी हुई थी। वहां के लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनके इतने सेफ प्लेस पे कोई ऐसा इंसान भी है जो किसी को जान से मार सकता है, किसी पे अटैक कर सकता है। किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था। जेसिका सबसे अच्छे से बात करती थी। आसपास के सभी लोग जेसिका को जानते थे और वो ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जेसिका पे अटैक हुआ है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि घर पे फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं है, मतलब जबरदस्ती कोई भी घर पे नहीं घुसा है, जिसका मतलब ये साफ है कि जेसिका उस इंसान को जानती थी। शायद जेसिका ने उसे पहचाना और घर का गेट उसके लिए खोला ताकि वो अंदर आ सके। सो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो रही थी कि जेसिका अपने अटैकर को पहचानती थी, जानती थी। मितेश ने बोला कि वो अपना लैपटॉप लेने फार्मेसी शॉप गया था और पिज्जा के शॉप में भी गया था ताकि वो पिज्जा ले सके। सो पिज्जा शॉप की सीसीटीवी से ये क्लियर हो रहा था कि मितेश उस समय घर से बाहर था। वो पिज्जा खरीद रहा था। इन सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली वो पिज्जा खरीदते हुए दिख रहा था। वो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई स्ट्रेस नहीं था, आराम से वो पिज्जा खरीद रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था। सारे इन्वेस्टिगेशन के बीच जेसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें रियल कॉज ऑफ डेथ पता चलती है। सो रियल कॉज ऑफ डेथ थी एस्फिक्सिया। जेसिका की डेथ एक्सफिक्सिएशन की वजह से हुई थी। उसकी नेक पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया था और ये भी पता लग रहा था कि किसी लाइगेचर का यूज किया गया है ताकि जेसिका का गला घोटा जा सके। सो फर्स्ट डे पे जेसिका की पूरी फैमिली मितेश के साथ थी ताकि उसे सपोर्ट करने सभी को अपने अपने घर जाने को कह दिया और ये भी बताया कि हम एक पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं सस्पेक्शन के बेसिस पे। 17 मई 2018 को पुलिस ने एक पर्सन को सस्पेक्शन के बेसिस पे अरेस्ट कर लिया और ये पर्सन कोई और नहीं था, जेसिका का हस्बैंड मितेश पटेल था। इस न्यूज से जेसिका की सारी फैमिली शॉक हो गई। वहां की कम्युनिटी सारी की सारी शॉक हो गई। किसी को भी ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि इतना जिम्मेदार आदमी, इतना जिम्मेदार इंसान, एक परफेक्ट हस्बैंड को सस्पेक्शन के बेसिस पे भी कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि पुलिस को मितेश पे सस्पेक्शन क्यों हुआ। सो पुलिस ने सारा का सारा घर सर्च किया था। पुलिस जब घर की तलाशी ले रही थी तो पुलिस को एक हार्ड ड्राइव मिली जो कि बेडरूम में बेड के नीचे छुपा के रखी गई थी, जो कि घर की सीसीटीवी के सिस्टम से जुड़ी हुई थी और ये बात मितेश ने पुलिस को बताई ही नहीं। हार्ड ड्राइव में कुछ टाइम पहले ही जेसिका और मितेश ने ये सीसीटीवी इंस्टॉल कराया था अपने घर में अपनी सेफ्टी के लिए और ये जो हार्ड ड्राइव है वो बेडरूम के ही कबर्ड में रखा हुआ होता था ताकि उसकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी करी जा सके कि अगर घर पे चोरी भी होती है तो ये हार्ड ड्राइव किसी चोर के हाथ में ना आए और इनके पास एविडेंस सिक्योर रहे। पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो यह हार्ड ड्राइव उस कबर्ड में थी ही नहीं। जब सर्च किया गया पूरा का पूरा घर तब यह हार्ड ड्राइव बेड के नीचे तब यह हार्ड ड्राइव पुलिस को बेड के नीचे मिली और इसमें उस दिन की सारी फुटेज रिकॉर्ड थी। अब हम बात करेंगे इस सीसीटीवी फुटेज की जो मितेश और जेसिका के घर पे लगी हुई थी। तो टाइमलाइन देखते हैं। 3:30 पे मितेश अपने जिम से वापस आ जाता है। वो फिर घर में ही था। 7 बजे के आसपास जेसिका वापस आती है और मितेश 7:44 को बाहर जाता है और 8:15 8:15 को वापस आता है। इन उसके 5 मिनट बाद ही उसने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया जैसे कि मितेश ने बताया था। अब इस पूरी सीसीटीवी फुटेज में 7:44 से लेके 8:15 के बीच कोई भी इंसान ना तो घर के अंदर आ रहा है ना तो घर से बाहर जा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था और मितेश के इमरजेंसी कॉल करने के 6 मिनट पहले ही ये डिस्कनेक्ट होता है।
पुलिस ने सारा का सारा घर छान मारा और फार्मेसी पे भी सर्च किया, तब इन्हें कई सारी चीजें मिली। सो इसी बेड के नीचे एक सूटकेस भी मिला। फार्मेसी में भी जब सर्च कंडक्ट करी गई तो वहां पे भी डिफरेंट पैकेट्स में ज्वेलरीज मिली, गोल्ड बार्स मिले, 25,000 पाउंड्स उनको मिले और ऐसे ही छोटे मोटे प्लास्टिक बैग्स में 2,000 पाउंड अलग से रखा गए थे। फिर पुलिस ने सोचा कि मितेश के फोन को चेक करना चाहिए और जेसिका के फोन को चेक करना चाहिए। जब उन्होंने उनके फोन्स को चेक किया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन उनके फोन में मिला, वो था आईफोन हेल्थ ऐप। आईफोन हेल्थ ऐप क्या करता है कि आप जितने भी स्टेप्स लेते हो उन्हें काउंट करता है एंड आपकी हार्ट रेट भी मेजर करता है। इस आईफोन हेल्थ ऐप से पुलिस वालों को ये पता लगा कि मर्डर के टाइम पे मितेश पूरे के पूरे घर में भाग रहा था। 7:04 पे जेसिका का हेल्थ ऐप अनफॉर्चुनेटली कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता है। 40 मिनट के बाद जेसिका का आईफोन हेल्थ ऐप 14 स्टेप्स घर की बाहर साइड चलता है एंड पुलिस ने ये सोचा कि मितेश ने ही ये किया होगा ताकि वो ये बता सके कि कोई भी अटैकर है, उसने फोन अपने साथ रखा होगा, इस वजह से ये मूवमेंट शो हुई है। जब के बाद मितेश बाहर चला गया, सीसीटीवी में आप देख सकते हैं जब वो वापस आता है तब इसके बाद भी आईफोन हेल्थ ऐप ये दिखाता है कि घर वापस आने के तुरंत बाद इमरजेंसी कॉल नहीं करी गई थी। मितेश सीढ़ियों से ऊपर गया, उसके कुछ टाइम बाद उसने इमरजेंसी फोन करी, बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ। अब इतने सारे एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट कर लिए थे, तब मितेश पटेल पे मर्डर के चार्जेस लगे। मितेश ये कह रहा था कि उसने जेसिका का मर्डर नहीं किया है। वो फार्मेसी में काम करने वाले लोगों को ये पता था कि मितेश ऑनलाइन डेटिंग एप्स यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ जेसिका को इसकी खबर नहीं थी। पर जेसिका को मितेश के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का पता था कि शादी के कुछ समय बाद ही मितेश का एक डॉक्टर के साथ, जिसका नाम अमित पटेल था, अफेयर था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ये अफेयर 8 साल चला। मितेश जेसिका को हमेशा बोलता था कि ये खत्म हो चुका है, ही इज फेथफुल नाउ, बट ये खत्म नहीं हुआ था। जो डॉक्टर अमित पटेल था वो ऑस्ट्रेलिया से मितेश से मिलने आता था और जेसिका हमेशा मितेश और अमित को बात करते हुए देखती थी। जिस दिन जेसिका की डेथ हुई, जिस दिन जेसिका का मर्डर हुआ, उस दिन भी मितेश ये ऑनलाइन डेटिंग एप्स यूज कर रहा था। सारे के सारे एविडेंसेस मितेश के अगेंस्ट थे। अब तो मोटिव भी क्लियर हो गया था कि मितेश जेसिका को क्यों मारेगा, पर फिर भी मितेश ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जब पुलिस मितेश की इंटरनेट हिस्ट्री देखती है तो उन्हें ये पता चलता है कि ये एक प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि कुछ सालों पहले से ही, 5 साल पहले से ही मितेश ये सर्च कर रहा था कि एक फेक क्राइम सीन कैसे क्रिएट करते हैं, अपनी वाइफ का मर्डर कैसे कर सकते हैं, इंसुलिन ओवरडोज कैसे कर सकते हैं, किसी का मर्डर करके कैसे बच सकते हैं। उसने ये सारी चीजें सर्च करी हुई थी इंटरनेट में कि एक परफेक्ट मर्डर कैसे कर सकते हैं। एंड इन सारे एविडेंसेस से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि ये एक इंटेंशनल मर्डर था, ये एक प्लान्ड मर्डर था। बहुत ही लंबे टाइम से मितेश इसे प्लान कर रहा था एंड फाइनली 14 मई 2018 को उसने ये एग्जीक्यूट किया। सो अब हम ये जानते हैं कि आखिर मितेश ने जेसिका के साथ किया क्या। सो हुआ यूं कि मितेश ने उस दिन शाम को जेसिका को इंसुलिन की इंजेक्शन दी थी, जिसकी वजह से वो वापस फाइट नहीं कर पाई। वो बिल्कुल हेल्पलेस थी, इनकेपेबल थी फाइट बैक करने के लिए। इसके बाद मितेश भाग के सारा घर फैलाता है, जो कि उसका आईफोन ऐप भी बता रहा है। सारा सामान फैला देता है ताकि ये लगे कि घर पे चोरी हुई है, कोई ऐसे लोग आए थे जिन्होंने घर पे अटैक किया है एंड जेसिका पे अटैक किया है। इसके बाद उसने एक प्लास्टिक का बैग लिया और उसकी हेल्प से जेसिका को सफोकेट किया। प्लास्टिक बैग मल्टीपल जगहों से फटा हुआ था, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जेसिका इनकेपेबल होने के बाद भी कितनी मुश्किल से सांस लेना चाह रही थी। जब ये सारी चीजें बताई जा रही थी तो मितेश मना कर रहा था। वो बोल रहा था हम जैसे भी थे खुश थे। इसके बाद क्या हुआ कि मितेश ने अपनी कंप्लीट स्टोरी ही बदल दी। वो कहता है कि लंच के बाद से ही उसने जेसिका को नहीं देखा। इसके बाद उसने फिर से स्टोरी बदली और वो बोला कि नहीं वो उसके साथ घर पे ही था। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को एक और बहुत बड़ी बात पता चली
कि जेसिका पे इंश्योरेंस पॉलिसी थी और ये इंश्योरेंस 2 मिलियन पाउंड थी। 2 मिलियन पाउंड इंडियन रुपीस में 18 करोड़ होते हैं। सो एक और मोटिव यहाँ पे क्लियर हो गया कि जेसिका का मर्डर मितेश क्यों करना चाहता था। फर्स्ट तो पहली बात तो ये थी कि जेसिका के साथ वो खुश नहीं था। दूसरी बात ये थी कि उसके सर पे एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिससे जेसिका की डेथ हो जाती है तो ये इंश्योरेंस मनी किसको मिलेगी? मितेश को मिलेगी। तो यहाँ पे ये दूसरा मोटिव भी बिल्कुल क्लियर करता है कि मितेश जेसिका का मर्डर क्यों करेगा। तो बेसिकली प्लान ये था कि मितेश जेसिका का मर्डर करेगा, लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लेगा एंड जेसिका ने आईवीएफ के थ्रू जो एम्ब्रियोस फ्रोज किए हैं वो उसे लेगा और वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगा अपने बॉयफ्रेंड अमित पटेल के पास। पुलिस ने जब सर्च किया तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट मितेश की हैंड रिटन लिस्ट मिली थी, जिसमें उसने ये भी लिखा था कि उसे क्या क्या चाहिए होगा जब वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करेगा। और एक दिन बातों बातों में मितेश अपने कलीग्स को ये भी कह रहा था कि जेसिका इतनी ज्यादा बेवकूफ है, वो सब पे भरोसा करती है, वो किसी के लिए भी गेट खोल देती है, किसी ना किसी दिन कोई तो इसका मर्डर करके चला जाएगा। मितेश ने कोर्ट में ये जरूर एडमिट किया कि उसने ये सर्च किया था कि स्ट्रैंगल करने के बाद कोई पर्सन कब तक जिंदा रहता है, कि कितनी देर तक कोई इंसान स्ट्रैंगुलेशन के बाद जिंदा रह सकता है और मर सकता है। पर उसने ये बोला कि वो जेसिका के साथ बैठ के ये देख रहा था और वो ये कह रहा था कि कितना अजीब है कि मैंने ये जेसिका के साथ देखा। 14 मई के दिन ही जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे उन्होंने मितेश के नेक पे स्क्रैच मार्क्स देखे थे और उससे ये पूछा भी था कि तुमको ये स्क्रैच मार्क्स कैसे आए। तो मितेश ने बोला था कि जिम में वर्कआउट करते टाइम उसे ये स्क्रैच मार्क्स लग गए थे। लेकिन जब जेसिका की फिंगर नेल स्क्रैपिंग की रिपोर्ट आई तो वो मितेश के डीएनए से मैच हो गया। तो ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीएनए एविडेंस था मितेश के अगेंस्ट। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिर्फ यही डीएनए सैंपल नहीं था। सो जिस प्लास्टिक बैग से मितेश ने जेसिका को सफोकेट किया था उसमें भी मितेश का डीएनए था। तो उसका स्वेट, सलाइवा दोनों ही इस प्लास्टिक बैग में था। जेसिका का डीएनए प्लास्टिक बैग के अंदर था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एविडेंस था मितेश के अगेंस्ट। इसके अलावा जिस टेप से जेसिका को बांधा गया था, जिस डक टेप से जेसिका को बांधा गया था, उसमें भी मितेश के डीएनए एविडेंस थे। इसके अलावा जिस टेप से जेसिका को बांधा गया था उसमें भी मितेश के डीएनए एविडेंस थे। पर मितेश ने ये बोला कि जब वो उसका डक टेप ओपन कर रहा था तब ये ट्रांसफर हो गया होगा। फार्मेसी में सर्च करी गई थी तो डक टेप का आधा हिस्सा उन्हें फार्मेसी में मिला। एंड जब जेसिका की बॉडी से निकाला हुआ डक टेप उस फार्मेसी के डक टेप से मैच किया गया तो ये फिजिकल मैचिंग हो गई। मतलब जिगसॉ पजल की तरह वो सारे के सारे एंड्स मैच कर गए, जो कि ये बताते हैं कि यही डक टेप जेसिका को बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 12 दिनों के ट्रायल के बाद मितेश को गिल्टी माना गया। मितेश को 30 साल की सजा हुई और जज ने ये भी बोला कि मितेश का ये जो क्रिमिनल एक्ट है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, प्री प्लान्ड और प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया गया प्लान है, इसीलिए मितेश को 30 साल की सजा हुई। जेसिका की फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन के एंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी एंड लोगों को थैंक यू बोला जिन्होंने भी इस एविडेंस में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने ये बोला कि जेसिका की कमी उनकी लाइफ में कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन जस्टिस सर्व किया गया तो इसी वजह से एक छोटी सी तसल्ली ही उनके दिल में है। वो अभी भी बहुत ज्यादा दुखी हैं और उन्हें अभी भी ये यकीन नहीं है कि जेसिका अब उनके साथ इस दुनिया में नहीं है। तो ये थी स्टोरी जेसिका पटेल की। आई होप आपको ये स्टोरी नॉलेजेबल लगी हो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन क्लिक द थम्स अप एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हम इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे दोनों ही प्लेस पे हैं, सो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय।